سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز، وزیر اعظم آج ترکیہ پہنچیں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان سے دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد شہباز شریف 4 ملکی دورے میں ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ وہاں کی قیادت کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کریں گے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم تاجکستان میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص کی بے مثال کامیابی، سیاسی قیادت کی استقامت، مسلح افواج کی ثابت قدمی اور عوام کے عزم کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیاسی قیادت کے احساس میں اشاعیہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان سمیت سینئر سیاسی قیادت کی شرکت۔ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے میں پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کے غیر متزلزل کردار کا اعتراف، سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی شاندار خدمات کی ستائش۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون میراموف کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ آذربائیجان پر بھی تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کرنے کا بھارتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ پاکستان کا پانی روکنا سنتاس معاہدے سمیت عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ پانی روک کر پاکستان کے عوام کو قحط سے دوچار کرنے کا بھارتی منصوبہ خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک اور گمراہ کن سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن دریاؤں کو روکنے سے باز رہے اور معاہدے کی پاسداری کرے۔ اقوام متحدہ میں نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا مسلح تنازعات میں پانی کے تحفظ پر اجلاس سے خطاب۔ Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. امریکی نائب صدر وینس اور وزیر خارجہ روبیو بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف۔ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار سے مسلسل انکار کرتا رہا۔ پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل۔ بھارت 2 دہائیوں سے بلوچستان میں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی خفیہ مہم چلا رہا ہے۔ دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد اور بھارتی حکومت کا اعتراف خطے کو جنگ کی جانب دھکیل رہا ہے۔ دفاعی ماہرین ہم پاکستان کے خلاف حملے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، اس سے ہماری بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت پر تنقید جاری۔ دفاعی تجزیہ کار پروین سوانے نے ٹی وی پروگرام میں پاکستان پر بھارت کے حملے کو غلطی قرار دے دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، غیر منظور شدہ گھروں کے خلاف کارروائی اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، متعلقہ افسران اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم لمز کے ذریعے سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ محسن نقوی رواں سال کی تیسری قومی پولیو مہم کا باضابطہ آغاز، مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔
मुहिम का मकसद पाकिस्तान से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे का हदफ हासिल करना है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो का मुल्क से पोलियो के खात्मे के अज़्म का यादा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। खान यूनिस शहर में लेडी डॉक्टर के घर पर हमला, 9 बच्चे शहीद, जिंदा बचाने वाला वाहिद बच्चा शदीद जख्मी। हमले में डॉक्टर आला नजार भी जख्मी हैं। शहीद होने वाले बच्चों की उम्रें 7 माह से 12 साल के दरमियान थी। गजा में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। भूख और प्यास से निढाल बच्चा दम तोड़ गया। गजा पहुंचने वाली आलमी इमदाद फलस्तीनियों के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन कौन होगा? लाहौर कलंदर्स टाइटल की हैट्रिक करेंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम दूसरी मर्तबा चैंपियन बनेगी? फैसला आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। फाइनल मुकाबला शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दोनों टीम्स चौथी मर्तबा फाइनल खेल रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 10 रुकनी ग्रुप की लाहौर आमद। खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। दूसरा मैच 30 मई और तीसरा मैच 1 जून को लाहौर में ही होगा। आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच का एक और एजाज। ATP सिंगल्स टाइटल की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। जोकोविच ने पोलैंड के हॉबर्ट हर्गिज को शिकस्त देकर जिनेवा ओपन टाइटल अपने नाम किया। जोकोविच ओपन एरा में टाइटल्स की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले महज तीसरे खिलाड़ी हैं। जोकोविच से कबल अमेरिका के जिमी कार्नर्स 109 और स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर ने 103 टाइटल्स अपने नाम किए। ख़वातीन फुटबॉल एशियन विमेंस चैंपियंस लीग इफ्तिताही इवेंट चीन की टीम वुहान जियांगडू ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में वुहान जियांगडू ने रेलवे टीम मेलबर्न सिटी को 1 गोल से शिकस्त देकर लीग के पहले चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। मैच का फैसला पेनाल्टी किक्स पर हुआ। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल जेरोडी इटालिया रेस साइकिल रेस डेनमार्क के कैस्परस ग्रीन ने 14वां मरहला अपने नाम कर लिया। एस ग्रीन ने 195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 4 मिनट 40 सेकंड्स में तय किया। रेस लीडर मेक्सिको के आइजैक डेल टोरो अपनी मजमूई बर्तरी में मजीद इजाफा करने में कामयाब। La maglia rosa per Isaac del Toro. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू होगी। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, दिफाई इश्तराक, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान हिमायत करने वाले बरादर ममालिक का शुक्रिया भी अदा करेंगे। दौरे के इख्तितामी मरहले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में होने वाली बैनुल अक़वामी
कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे, जहां माहौलियाती तब्दीलियों, ग्लेशियर्स के पिघलाव और उसके असरात पर गौर व गौज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का यह दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, बल्कि खित्ते में अमन, ताउन और हम आहंगी के फरोग के लिए भी अहम संग मील साबित होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से तुर्की का दो रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसील PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकराम चौधरी से जानिए। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्तांबुल के सदारती महल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ अहम मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों की क़यादत जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो आलमी और इलाकाई अमूर हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे। जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हाल ही में जारहियत मुसल्लत की गई और पाकिस्तान ने उसका फिर मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म इस मुश्किल सूरत हाल में जो तुर्क अवाम और क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया गया, उस पर भी तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। थोड़ा सा अगर हम दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान आला सतह राब्तों का जिक्र करें तो फरवरी में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें जो आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसल है उसका 7वां इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान 25 से ज़्यादा मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तें जो हैं उन पर दस्तखत हुए। इस दौरे के दौरान दिफाई पैदावार, डिजिटाइजेशन, ज़राअत, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया गया। इस दौरे के दौरान ये भी फ़ैसला किया गया कि जो दोनों मुल्कों की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको वुसअत दी जाएगी। दोनों मुल्कों की क़यादत ने इस अज़्म का भी इरादा किया था कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती है ये इनके अवाम की अमानत है और इसको आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उसके बाद अप्रैल में अनकरा का दौरा किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में जो तल्लुकात हैं उन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये जो 2 रोज़ा दौरा है ये दो तरफ़ा तल्लुकात में नए बाब का इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकराम चौधरी आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत की इस्तेकामत, मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और अवाम के अज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इशाइये का एहतमाम किया। तफसील बता रहे हैं अनीस आवाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और पाकिस्तानी कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार इशाइया दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बावकार तकरीब की सदारत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, अहम सियासी जमातों की क़यादत, आला सरकारी हुक्काम और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने इस मौका पर दानिशमंदाना क़यादत को सराहते हुए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल जज्बे हुब्बुल वतनी को काबिल तारीफ करार दिया। अशाइया तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की स्ट्रेटेजिक बसीरत को सराहा और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान हम-आहंगी को कलीदी करार दिया। उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार से तशबीह देते हुए खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की आला पेशा महारत और अज़म को भी सराहा, जिन्होंने इस नाजुक मरहले पर अहम किरदार अदा किया। ये तकरीब कौमी यकजहती, अज़म और नई कुव्वत और तहरीक के साथ आगे बढ़ने के अहद का मज़र थी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जेहून बेरमोव से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आइंदा दौरे अज़रबैजान से मुतालिक भी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अस्करी बर्तरी साबित कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत और इसका बयानिया बहुत पीछे रह गया है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन।
मीडिया से बात करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दुनिया ने भारत के बयानिए को मुस्तरद और पाकिस्तान के सच पर मबनी बयानिए को तस्लीम किया है। आलमी सतह पर इस बात का भी एतराफ हो रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने अस्करी बल्कि बयानिए और सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल की। तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी जंग के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। बाकू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फतह का। ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो एक हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ दिया। दुनिया ने इसको इतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी जो है वो वाजे कर दी है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की अल्लाह ताला के फजल से। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप, वॉर स्ट्रेटजी और दूरंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। उनकी बहादुरी और दिलेरी को सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रेटजी थी और जो एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोरसाइट थी, तो मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दिलेरी को भी हम सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके शाहीनों ने जो एक कारनामा सर अंजाम दिया उनको भी खराज तहसीन है। और नेवल चीफ जनाब एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने उनके शिप्स तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रुख करे। विफाकी वजीर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। इससे पहले विफाकी वजीर अताउल्लाह तारा ने कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की देरीना कारकुन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम की अहलिया समीना इकबाल कासिम के जनाजे में शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा के बाद मरहुमा की कब्र पर फूल निछावर किए। मरहुमा के अहले खाना और मकामी रहनुमाओं से बात करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मरहुमा पार्टी की एक बावकार नजरियाती और मुतहर्रिक कारकुन थी, जिन्होंने पार्टी के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। मरहुमा का इंतकाल पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के कमीशन ने नैतन बॉर्डर की क़यादत में इस्लामाबाद का स्टाफ दौरा मुकम्मल कर लिया है। वफ़द ने हुकूमत की माशी इस्लाहात और माशी बहाली के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद ये एक अहम कामयाबी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद माशी मैदान में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी। IMF ने भारतीय प्रोपेगंडा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे करने का इतराफ़ कर लिया है। The case of Pakistan, our board found that Pakistan had indeed met all of the targets. It had made progress on some of the reforms. And for that reason, the board went ahead and approved the program. तर्जुमान IMF जोली कोजिक ने कहा है कि बोर्ड ने पाकिस्तान की जानिब से मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त और ज़रूरी शराइत पूरा करने के बाद फंडिंग से इत्तेफाक किया है। जोली कोजिक का ये रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में था, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। Our executive board conducts periodic reviews of lending programs to assess their progress. And they particularly look at whether the program is on track, whether the conditions under the program have been met, and whether any policy changes are needed to bring the program back on track. There was a sufficient consensus at the board to allow us to move forward, or for the board to decide to move forward and complete Pakistan's review. बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत समाजी शोबे और तरक्याती अखराजात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। इलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मालियाती खसारा कम करने के लिए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और महसूलात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि दरमियानी मुद्दत में महंगाई की शरह को 5 से 7% तक रखने के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल सताइश हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की इलामिया के मुताबिक हुकूमत ने माशी बहाली और इस्तेहकाम के लिए ठोस और मजबूत इक़दामात उठाए हैं। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की आज रवाना हो चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आका मसूद खालिद से। आका मसूद खालिद, बताइएगा, वज़ीर आज़म आज तुर्की के अहम दौरे पर रवाना हो गए हैं, बुनियादी मकसद इस दौरे का बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कोई आला सतही वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है, कौन कौन सी अहम शख्सियात उसमें शामिल है? मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और माविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हैं। इंतहाई अहम नौइयत का ये दौरा है। वज़ीर आज़म 25 से 23 मई तक जो है वो तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म इन ममालिक के जो रहनुमा हैं उनके साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ुसूसन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अहमियत के जो मामलात हैं उस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान भारत के साथ जो हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत है उस पर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ग्लेशियर्स के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस है, बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, इसमें भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए ये दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है कि जो हालिया जो कशीदगी थी पाक भारत के हवाले से और जिस तरह पाकिस्तान ने उसमें भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद ये दौरा इंतहाई अहमियत नौइयत का है। पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम दोस्त ममालिक को जो इसमें पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल दोस्ती का इयादा किया, उनको शुक्रिया अदा करना है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा PTV न्यूज़ आका मसूद खालिद, हमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आज तुर्किया दौरे के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में आज तुर्की रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और इसके अलावा वज़ीर आज़म आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का ये दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से भी बारहा भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। भारत गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। 2009 में शर्म शेख में पाकिस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस कार्रवाइयों पर पहली मरतबा खदशात का इजहार किया और बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया। विकीलीक्स 2010 में इस बात का इंकशाफ सामने आया कि अमरीकी सफारती केबल्स के मुताबिक बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन पाकिस्तान में भारतीय खुफिया सरगर्मियों बशमूल बलूचिस्तान में बदअमनी से मुंसलिक कार्रवाइयों से आगाह थे। पाकिस्तान ने 2015 और 19 में अक़वाम मुत्तहिदा के तफसीली नज़ीर पेश किए। 2016 में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हुई जो रॉ के एजेंट के तौर पर काम करता था। 2023 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस सरफराज मंगलज़ई और गुलजार इमाम शुम्बे के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में भारतीय आर्मी के अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश किए। मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है, मोदी का यह बयान उसके अपने ही गले पड़ गया। भारतीय अवाम ने मोदी को गैर संजीदा बयान बाजी पर आड़े हाथों ले लिया है। भारतीय खवातीन सीखपा हो गईं और कहा कि मोदी सिंदूर का सौदागर है, जो खुद सिंदूर का मान न रख सका वो उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। वो सिंदूर जो आपने भी किसी की मांग में भरा था, क्या आपको उसकी कीमत पता है? देश की वो विधवाएं जो पहलगाम के आतंकवादी अटैक की वजह से विधवा हुई है, आपको उनके सिंदूर का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने से आप सिंदूर की कीमत नहीं बताएंगे, या आप मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है ये कहने से सिंदूर की असलियत नहीं पता लगेगी। आपने एक ट्रम्प
अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर कर दिया। कौन होते हैं ट्रम्प हमारे देश के मामलों में बोलने वाले? आप फिर क्यों प्रधानमंत्री हैं? आप उनके तलवे चाटते हैं, आप उनकी गुलामी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आपको बनाया था। ट्रम्प हमारे देश के बीच में बोलने वाले होते कौन? आप किससे मिले? आप जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाएं, आप किससे मिले? आप किसी एक से मिले? आप कहाँ गए? आप कहते हैं विदेश से आते ही मैं सीधा जो है बिहार जाता हूँ। बिहार में जाके आप एक रैली को संबोधित करें। आपको सबसे पहले उन विधवाओं से मिलना था। आपको पहलगांव जाना चाहिए था जहाँ पे ये आतंकवादी हमला हुआ था। ये सब गलत है। मोदी जी लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। हमें तो लगता है कि जब जब इलेक्शन आएंगे, जब जब कभी पुलवामा होगा, कभी पहलगांव होगा, ये सब होते ही रहेंगे। मोदी जी ने क्या किया है? वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि जी देखो मैंने ये किया। सारे चैनल्स तो उन्होंने खरीद रखे हैं। क्यों नहीं जाके उनकी विधवाओं से मिले जिनके सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, जवान बेटा मार दिया जिसका? उनसे क्यों नहीं मिले जाके मोदी जी? जाते ना, मिलते, लोगों का दर्द समझते। मोदी जी सिर्फ बातें बना रहे हैं और जुमले सुना रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी को बोलने से ज्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था, बजाय इस पहुंचने के। वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कब इलेक्शन में कौन सा पंच मारना है और कब मुझे उठना है, सिर्फ वोट्स के लिए। अब उनका पंच बिहार था, थोड़े टाइम बाद अभी वो अमृतसर के नाम लेते हैं कि पंजाब में ये। जब पंजाब में वोट्स आएंगे तो फिर वो यही कहेंगे जाके कि भैया मैंने अमृतसर गुरुद्वारा मैंने बचा दिया, मैंने ये कर दिया। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि सौदागरी है कि वो हर चीज को मुद्दा बना के अपने भी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। कोशिश तो वो यही कर रहे हैं ना कि हम सिंदूर के नाम पे वोट बटोरे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीजों को खुद भी समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम थोड़े से टाइट हो जाए, इनकी बातों में न आए। और दूसरी बात, आतंकवादी किस तरीके से घुस गए। इतनी फौज होने के बाद भी बेचारे आम जो भी लोग थे, हमारे जितने भी भाई बहन थे, सबको मार डाला। उनकी पत्नी को घर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके दुख तकलीफ सुनने चाहिए उनको। ऐसे थोड़ी कि वहाँ घूमने से काम थोड़ी हो जाएगा। देखिए ये इलेक्शन बह रहे हैं उनके अंदर। उनको जीतने का जो कीड़ा हो गया ना, वो साम दाम दंड भेद, जनता के इमोशन, शहीदी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, वोटों की गंदी राजनीति। भारत की आवाम के तासुरात और ख्यालात आपने जाने। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सुहाने ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दिया है। एक टीवी प्रोग्राम में प्रवीण ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, इससे हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा है। प्रवीण सुहाने ने कहा कि पाकिस्तानी एयर मार्शल औरंगजेब ने बताया कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, जबकि हमारे भारतीय एयर मार्शल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसान तो होते ही हैं। इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर। ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है और वही हुआ है। पूरी
भारत की पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। भारत ने आलमी बरादरी में झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की नापाक जसारत की है। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा आलमी बैंक के 20 अरब डॉलर्स के मंसूबे की भी मुखालफत की। भारत ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की हर हद तक कोशिश की। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत की जानिब से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास आबी मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ये 24 करोड़ से ज्यादा अफराद की बका के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूद ने सिल्वेनिया की जानिब से बुलाए गए आर्या फार्मूला इजलास से खिताब में आलमी बरादरी से अपील की कि वो ऐसे इक़दाम से पहले ही मुतहर्रिक हो जाए जो इंसानी बहरान को जन्म दे सकते हैं या खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी ऐलान की मजम्मत और भारत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने कानूनी फ़राइज़ की मुकम्मल पासदारी करे। पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी की अलामत इन दरियाओं का बहाव रोकने, मोड़ने या महदूद करने से बाज रहे। हम ऐसे किसी भी इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। नायब सफ़ीर उस्मान जदूद ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो इन मामलात पर करीब से नज़र रखे और जहाँ ज़रूरी हो बर वक्त इक़दाम करे। ISPR ने मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से नया नगमा जारी किया है। नगमे में बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। नया नगमा कौमी यकजहती और दिफाई आज़म का इजहार है। तकदीर की ललकार हम, तेरे चैन के पहरेदार हम, दुश्मन की जात पे भारी जो रखते हैं वो किरदार हम, इकरार हम, आवाज नहीं यलगार हम, तेरी एक आवाज पे मिटने को वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, लोधरा समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रोज़ चलने वाली शदीद आंधी और तेज़ हवाओं से फसलों को नुकसान पहुँचा है। आम की तैयार फसल को बड़ा नुकसान पहुँचा और मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। बाज़ मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रिपोर्ट करेंगे लोधरा से अब्दुल्ला डाहा। मुल्तान, लोधरा और गिरदो नवाज समेत जनूबी पंजाब के इलाकों में कल शाम आने वाली शदीद आंधी और तेज़ हवाओं ने आम के बागात को बुरी तरह मुतासर किया है। किसानों के मुताबिक आम की फसल मुकम्मल तैयार थी, लेकिन तेज़ झकड़ों ने न सिर्फ फल ज़मीन पर गिरा दिया बल्कि कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। जी सर, ये रात जो आंधी आई है इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। बागात में जो आम वगैरह लगे हुए थे बहुत नीचे गिरे हैं। देख रहे हैं आप, ये सारा अम्बली छोटी बड़ी जो है पक्की थी कच्ची वो सब गिरी हुई है और दरख्त भी गिरे हैं। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीज़न के चंद इलाकों में आंधी के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, ताहम बाज़ इलाकों में मकई की तैयार फसल और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। कमिश्नर मुल्तान समेत इंतज़ामिया नुकसान का तखमीना लगा रही है। जनूबी पंजाब के इन इलाकों में शदीद मौसमी हालात ने जहाँ ज़राअत को नुकसान पहुँचाया है, वहीं पर मकामी अफराद की ज़िंदगी भी मुतासर हुई है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा।
नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बारिश ने मौसम पर खुशगवार असरात मुरतब किए हैं और हीट वेव की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। काश्तकारों के लिए भी बारिश नेमत साबित हुई है। फैसलाबाद से हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद मौजूद हैं, उनसे फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करते हैं। जी हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, बताइएगा बारिश ने फैसलाबाद के मौसम पर क्या असर छोड़ा है? रात जो बारिश हुई और आंधी आई उसने मौसम में खासी तब्दीली वाक़या कर दी है। आंधी काफ़ी तेज़ थी, 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली। अगरचे बारिश की मिकदार कम थी, 8 मिलीमीटर थी, लेकिन इसने मौसम में खुशगवार तब्दीली वाक़या की है। हीट वेव की शिद्दत बड़ी थी, लोग बीमार हो रहे थे और दर्जा हरारत तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया था। बारिश की वजह से आज दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। इस बारिश की वजह से काश्तकार को खासा फ़ायदा हुआ है। अभी गंदम की फसल जो है उसको काट कर किसान जो हैं वो गन्ने के लिए, चावल के लिए और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में तिल की फसल काश्त करने के लिए अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे, तो बारिश के होने की वजह से ज़मीन नरम हो गई है और काश्तकार को खासी आसानी हो गई है अगली फसल को काश्त करने के लिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद, आप हमें फैसलाबाद से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, सवात, मालाकंड, शांगला, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर के अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहने और बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी मौजूद है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बाद अज़ दोपहर कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ताहाल जारी है। आज अलल सुबह खान यूनिस शहर में लेडी डॉक्टर के घर पर हमले में उसके 9 बच्चे शहीद हो गए। जिंदा बच जाने वाला वाहिद बच्चा शरीर जख्मी है। हमले में डॉक्टर अल निजार भी जख्मी है। शहीद होने वाले बच्चों में सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल है, जबकि सबसे छोटा चंद माह का है। शिमाली गजा के शहर जबालिया पर सियोनी फोर्सेज के एक और हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के एक डॉक्टर के मुताबिक पट्टी में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। भूख और प्यास से निढाल एक बच्चा दम तोड़ गया। उन्होंने बताया कि गजा में भूख की वजह से मौत एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और बच्चे इससे खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गजा पहुँचने वाली आलमी इमदाद फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफ़ी है। हर तरफ लोग खाने पीने की अशिया की तलाश में फिर रहे हैं और इन अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हुक्काम ने आलमी बरादरी से अपील की है कि फौरी तौर पर मज़ीद इमदाद न पहुँच सकी तो बहुत ज़्यादा जानी बहरान पैदा हो सकता है। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ यूनान के नामवर गुलकार भी बोल पड़े। यूनानी पार्लियामेंट के सामने गुलकारों ने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अपने गीतों के जरिए गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ गीत गाए। यूनानी पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद जमा हुए और आज़ादी फ़लस्तीन के नारे लगाए। यूनान भर से नामवर गुलकारों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने गीतों के जरिए इसराइली जारियत को भरपूर अंदाज से उजागर किया। प्रोग्राम के आखिर में यूनान में फ़लस्तीन के सफ़ीर ने खिताब में इज़हार यकजहती पर यूनानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। दीगर अहम कौमी खबरों का रुख करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने गैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ कार्रवाई और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दिया और कहा कि मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी आप सब की पहली तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की भी हिदायत करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के दिनों में शहर की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए।
मुल्क भर में तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो रहा है, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने मुहिम का बाकायदा आगाज इस्लामाबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। आयशा रज़ा फारूक ने अपने पैगाम में कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के साथ साथ विटामिन ए की इजाफी खुराक भी लाजमी दें। मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में 2025 की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू हो रही है, जिसके दौरान तकरीबन 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम एक निहायत अहम वक्त पर शुरू हो रही है, जब रवां साल यानी 2025 में इस काबिल बचाव बीमारी से 10 बच्चे मुतासर हुए हैं। हालांकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हर घर की दहलीज तक गए, ताहम मौजूदा वसाइल और हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद वालिदैन की जरा सी लापरवाही ने इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। बतौर कौम ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ये यकीनी बनाएं कि कोई भी बच्चा इस मोहलिक बीमारी का शिकार ना हो, जो जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। पोलियो वायरस अब भी हमारे माहौल में मौजूद है। हमारा अज़्म है कि कोई बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रहे। खास तौर पर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कराची, क्वेटा और लाहौर जैसे इलाकों में हम हर मुहिम को पहले से बेहतर बना रहे हैं, हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी शफाफियत के साथ पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पोलियो एक इलाकाई चैलेंज है, लिहाजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात कर रहे हैं। अप्रैल और मई में हम आहंग मुहिमात सरहद पार वायरस की मुंतकली को रोकने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। मैं यहाँ जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत का भी जिक्र करना चाहूँगी, जिनकी रहनुमाई में हम पोलियो के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद न सिर्फ ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम को दरपेश पेचीदा चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी वसाइल की फरहमी को भी यकीनी बना रहे हैं। याद रखें, एक जिम्मेदार वालिदैन होने के नाते अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे हर बार लाजमी पिलवाएं और अपने इर्द गिर्द रहने वाले वालिदैन को भी इस अहम काम की तरगीब दें, क्योंकि इसी जज्बे और ताउन से हम पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। कुलज़म बशीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान, CO हेल्थ डॉक्टर हादी हुसैन, डॉक्टर फातिमा नूर, फोकल पर्सन आमिर खान ने ज़िला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जो 26 से 30 मई तक जारी रहेगी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ज़िला भर के 6,14,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ज़िला भर में 2570 टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर हिफाजती कतरे पिलाएंगी। हमारी पोलियो बाकायदा मुहिम जो है वो 26 मई से स्टार्ट होगी, 5 दिन जारी रहेगी। पहले 3 दिन हम बच्चों को कतरे पिलाएंगे और बाकी 2 दिन हमारे फॉलो अप के अंदर होंगे। जो हमारे मिस चिल्ड्रन होंगे उनको हम इंश्योर करेंगे कि कतरे जो हैं वो पिलाए जाएं। खानेवाल के लोगों से गुजारिश है कि वो जो टीमें घर घर हैं उनसे ताउन कराएं, अपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कमिश्नर सलमा सुलेमान ने पोलियो वर्कर के हमरा आगाही वाक में भी हिस्सा लिया, जिसमें सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए माजूरी से महफूज रखें। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। पाकिस्तानी आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस में क़याम और मनासिक हज की अदायगी के दौरान 1000 से ज़्यादा मुआवनीन हज, मेडिकल मिशन और हरम गाइड्स का अमला रहनुमाई और मुआवनत की फराहमी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। तफसील जानते हैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद हमारे नुमाइंदे PTV बिलाल शेख से।
पाकिस्तान से फ़िज़ा हज के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचने वाले 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में मुआविनत और रहनुमाई की फराहमी के लिए इस साल 430 मुआविनीन हज, 300 से ज़्यादा हज मेडिकल मिशन का अमला और हरम गाइड्स मक्का, मदीना और जद्दा में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। खिदमत के जज्बे से सरशार इन मुआविनीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस में आज़मीन की रहनुमाई के लिए इस्लामाबाद के हाजी कैंप के बाद मशाइर में भी ख़ुसूसी तरबियत फराहम की गई है। जो सबसे मेन पर्पज़ होगा या जो आप कह लें कि सबसे अहम काम होगा वो मुआविनीन का किरदार होगा जब मशाइर डे स्टार्ट होंगे। मिना के अंदर हमारे जो हाजी हैं बखैरियत वाफियत पहुँचें, वो अपने ही कैंप में जाएँ, किसी जगह भटके नहीं, उनको अच्छा खाना मिले और खाना मिलने के बाद वो अपने टाइम से अरफात के लिए रवाना हों। या रमी करना एक मुश्किल टास्क है, तो उसके बारे में भी तमाम आगाही दी जाती है कि हाजियों को कैसे गाइड करना है कि उन्होंने रश से कैसे बचना है और जो अपनी रमी है वो कैसे टाइमली करके आगे हरम की तरफ कैसे जाना है। आज की तमाम किस्म की शिकायत जो है वो उनको दूर करने के लिए जो भी लाहे अमल है वो उनके पास होता है और वो उसी के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। आज़मीन हज को खिदमात की फराहमी के लिए पाकिस्तान से वजारत हज का अमला, मुआविनीन हज और मेडिकल मिशन पर मुश्तमिल अमला मदीना और मक्का में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। कहते हैं कि इबादत से जन्नत मगर खिदमत से खुदा मिलता है। दुआ है कि इन मुआविनीन हज को हुज्जाज कराम की खिदमत के बदले अपने कुर्ब की सआदत अता फरमाए। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकर्रमा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि प्लास्टिक की आलूदगी हमारे माहौल, दरियाओं, समुद्री हयात और शहरी ढांचे के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक से पाक आलमी दिन के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्लास्टिक का खात्मा हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है और अवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ की अशिया इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर शीशे के जग इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज कर दिया। योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिला करेगी, जिसकी तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन है कि हर सरकारी अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। महकमा जंगलात और पंजाब बैंक के बामी इश्तराक से ब्रांचलेस बैंकारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत पंजाब हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रही है। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन भारत को वो सबक सिखाया है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की कोशिश की तो इसका हशर दुनिया देखेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत के दौरान शुरका से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज वतन अजीज़ के एक एक चप्पे की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है और पूरी कौम इसके शाना बशाना है। इजलास के दौरान वज़ीर ममलिकत को ज़िले भर में जारी तरक्याती मनसूबों और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल FIA पाकिस्तान रफत मुख्तार राजा की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी इंसानी स्मगलिंग, वीज़ा फ्रॉड और हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन अब्दुल कादिर कमर की ज़ेरे निगरानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गुजरात की टीम ने मंडी बहाउद्दीन में छापा मारकर 2 इंसानी स्मगलरों सब्तैन और उमर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जराइम में मुलव्विस थे। दोनों इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA थाना में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान भारी रकम वसूल करके मुतासरीन को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत आज के दौर की एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी है जो जिंदगी के हर शोबे में नई राहें खोल रही है। मजीद बताएंगी पेशावर से अल्फा निगार। मसनूई ज़हानत एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो रोज़मर्रा के कामों को तेज़, आसान और मौसर बनाने में मदद दे रही है। लोग अब जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स की मदद से वीडियो, ऑडियो, तस्वीरें और 3D ग्राफिक्स तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर में तालीम, सेहत, ज़राअत, सहाफ़त
और हत्ता के अदालती निज़ाम में भी AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 77% कंपनियां अपने मुख्तलिफ शोबों में AI का इस्तेमाल कर रही हैं। हर चीज़ में AI है। जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात होती है, जहाँ पे एक डिवाइस जो है थोड़ा स्मार्ट काम करता है, तो हम कहते हैं AI की वजह से है। स्टूडेंट्स हैं वो AI टूल्स को यूज़ करके वेल प्रिपेयर्ड क्लास में आते हैं और उनके ज़रिए, उनके क्वेश्चंस के ज़रिए हम आसानी के साथ उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देकर हम अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जहां AI सहूलत फराहम करता है, वहीं इसके मनफी पहलू भी सामने आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि AI की मदद से बनाई गई जाली वीडियो, ऑडियो और तस्वीर सच और झूठ में तमीज़ मुश्किल बना रही है, जिससे सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हो रहा है। हमने बच्चों के अंदर इसको इनकलकेट करना है कि बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसमें हो। जब तक वो होगी तब तक उसके जो अंदर जो है चीज़ों को समझने की सलाहियत भी बढ़ती रहेगी। अल्फा निगार, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, खेल की खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं PSL की। पाकिस्तान सुपर लीग का नया चैंपियन कौन होगा? लाहौर कलंदर्स टाइटल्स की हैट्रिक करेंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी मर्तबा चैंपियन बनेंगे? फैसला आज फाइनल में होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मुअज़्ज़िमुद्दीन। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फैक्स देखो, दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का चैंपियन कौन कहलाएगा, फैसला होने में अब एक मैच बाकी है। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें फाइनल मैच में होंगी आमने सामने। दोनों टीमें चौथी मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलेंगी। लाहौर कलंदर्स की टीम 2 बार जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 बार PSL जीत चुकी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2019 में जबकि लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 2023 में PSL का टाइटल अपने नाम किया था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में 20 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 10 बार लाहौर जबकि 9 बार क्वेटा की टीम जीतने में कामयाब रही और एक मैच बगैर नतीजे के रहा। रवा सीजन में दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के साथ मैच खेल चुकी हैं। एक मैच लाहौर कलंदर्स के नाम रहा जबकि दूसरा मैच बारिश के बाइस मुतासिर हुआ और बगैर नतीजे के रहा। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी जबकि क्वेटा की कप्तानी सऊद शकील करेंगे। फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखा जा सकेगा। मुअज़्ज़िमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया है। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। मेहमान टीम के दीगर अराकीन कल लाहौर पहुंचेंगे। 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए टिकटों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मैचेस 28, 30 मई और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में जनरल एनक्लोजर्स के टिकट शायकीन के लिए 200 रुपए में दस्तयाब होंगे। फर्स्ट क्लास एनक्लोजर्स के टिकट की कीमत 300 रुपए, प्रीमियम एनक्लोजर्स की 400 रुपए और VIP एनक्लोजर्स के टिकट की कीमत 500 रुपए मुकर्रर की गई है। और स्नूकर में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बैंकॉक में Q स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तानी क्यूइस्ट बाबर मसी ने पंकज एडवानी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से मात दी। भारतीय खिलाड़ी पंकज एडवानी 3 बार IBSF चैंपियन रह चुके हैं। वो टूर्नामेंट के फेवरेट खिलाड़ी में टॉप पोजीशन पर मौजूद थे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, हमजा अकबर, हारिस ताहिर और असद इकबाल इससे कबल प्रोफेशनल सर्किट में खेल चुके हैं। नाज़रीन, जेहलम में 2 रोज़ा नेज़ाबाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में 200 से ज़ायद घुड़सवारों ने अपनी महारत का शानदार मुजाहरा किया। तफसील जानिए जेहलम से नुमाइंदा PTV न्यूज़ नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के तावन और पाकिस्तानी घुड़सवार अरूज कियानी की ज़ेर सरपरस्ती जेलम में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा आल पाकिस्तान नेज़ाबाजी चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई।
मुल्क भर से 50 से ज़ायद टीमों के 200 से ज़ायद घुड़सवारों ने इस रवायती और सकाफती खेल में हिस्सा लिया, जिनमें ख़वातीन घुड़सवारों की शमूलियत काबिल ज़िक्र रही। अपनी सकाफती जो पुराने हमारे खेल हैं, जो हमारी रवायत है, उसको दोबारा उजागर करना है। बच्चों को भी इस खेल की तरफ लाया जा सकता है और बल्कि बहुत अच्छी खिलाड़ी साबित हो सकती हैं। ये बड़ा अच्छा इवेंट जा रहा है और बहुत अच्छे राइडर्स आए हुए हैं, फीमेल राइडर्स भी आए हुए हैं। इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है क्योंकि रात का वक्त है और लाइटिंग बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में एक बड़ी नई बात है और ये बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह आगे जाके हर मेले में ये बात अपनाई जाएगी। इस रंगारंग इवेंट के मेहमान खुसूसी मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी थे। मुकाबलों के दौरान घुड़सवारों ने नेज़ाबाजी के मुख्तलिफ रवायती अंदाज पेश किए, जिनमें रफ्तार, दुरुस्त निशाना और फ़न का मुज़ाहरा काबिल दीद था। शायकीन ने बड़ी तादाद में इस इवेंट में शिरकत की, जो न सिर्फ तफरीह का जरिया बना बल्कि कौमी सकाफत के फ़रोग में भी अहम संगे मेल साबित हुआ। पंजाब गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जेलम के लोगों को इतना अच्छा, इतना खूबसूरत इवेंट देखने का मौका मिला। खास जेलम में इतने बड़े लेवल का नेज़ाबाजी का इंतजाम किया गया है। ये हमारी रवायत, ये मदाह हो या सवार हो, ये दोनों के दिल वहाँ पे। इख्तितामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और शीट तकसीम की गई। इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल को अपनी तहजीब व सकाफत से जोड़ने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। और खबर ये भी है कि खवातीन फुटबॉल की इफ्तिताही एशियन वुमेन्स चैंपियंस लीग चीन की टीम वुहान जियांगडू ने अपने नाम कर ली। वुहान चीन में खेले गए फाइनल में वुहान जियांगडू ने ऑस्ट्रेलियाई टीम मेलबर्न सिटी को 1 गोल से शिकस्त देकर लीग के पहले चैंपियन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला मुकर्ररा वक्त तक 1-1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में भी कोई टीम फैसलाकुन गोल न कर पाई। टाइटल के लिए दोनों टीमों को पेनल्टी किक्स दी गई, जिन पर वुहान ने तमाम 5 गोल किए, जबकि मेलबर्न की कप्तान रेबेका की पेनल्टी को चीन की मुतबादिल गोलकीपर चिन चिन ने रोककर न सिर्फ होम ग्राउंड पर अपनी टीम को फतह दिलाई बल्कि $10 लाख का इनाम भी दिलवाया। आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एक और संग मील उबूर कर लिया। जोकोविच ने ATP सिंगल्स टाइटल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। स्विट्जरलैंड में खेले गए ATP 250 इवेंट जेनेवा ओपन के फाइनल में जोकोविच ने पोलैंड के होबर्ट हुरकस को शिकस्त दे दी। जोकोविच ने हुरकस के खिलाफ पहला सेट 5-7 से हारने के बाद कमबैक किया और अगले 2 सेट 7-6 और 7-6 से जीतकर करियर का 100वां टाइटल अपने नाम कर लिया। जोकोविच ओपन एरा में टाइटल्स की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले महज तीसरे खिलाड़ी हैं। इनसे कबल अमेरिका के जिमी कॉन्स ने 109 और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने 103 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। और नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। शुक्रिया समीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। मई को दुनिया भर में फुटबॉल का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ फुटबॉल के फरोग का जरिया है बल्कि खेल के जरिए आलमी हम आहंगी, अमन और नौजवानों की मुस्बत तरबियत को उजागर करने का मौका भी फराहम करता है। कराची के इलाके लियारी के बच्चों पर मुश्तमिल स्ट्रीट फुटबॉलर्स की टीम ने नेपाल में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। इस तरह इन स्ट्रीट फुटबॉलर्स ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ताहम इस साल के आगाज में फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीयत भी बहाल कर दी गई है। लिहाजा फीफा फुटबॉल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हुकूमत, फुटबॉल फेडरेशन
और निजी इदारों को मिलकर ऐसे मंसूबे शुरू करने चाहिए जिनसे निचली सतह पर फुटबॉल की तरबियत, सहूलियात और टैलेंट की तलाश को फरोग मिले। पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। अगर उन्हें फुटबॉल के मैदान में सही रहनुमाई, वसाइल और मौक़े फराहम किए जाएं तो वो न सिर्फ कौमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी फुटबॉल के खेल में पाकिस्तान को एक बावकार कौम के तौर पर मुतारिफ करा सकते हैं। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।